मैं अभी पढ़ रहा था वही आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि प्रस्तुति इस विषय से किसी को शायद यहाँ पे कोई ऐसा हो जो इस विषय के उद्देश्य से असहमत हो, या जो ईवा एंसलर का एक कैंपेन है कि द वायलेंस मस्ट स्टॉप, द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन मस्ट स्टॉप, इसमें हम सब मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक रूप से इसका सहयोग कर रहे हैं। लेकिन बात है, जैसा बाबा ने शुरू में ही केंद्रित करा हम लोगों को, कि ये प्रस्तुति ने क्या उस उद्देश्य को आगे बढ़ा रही है। यही जो मैंने आपको दिया है, इसमें महामानव जी कह रही हैं, इट्स अ डिफिकल्ट प्ले टू डू बिकॉज विदाउट अ फर्म हैंड इट कैन स्लाइड इनटू सॉफ्ट पॉन्ड। ये उनका खुद का इस प्ले के बारे में नजरिया है। आगे बढ़ने के पहले मैं डॉक्टर आलोक वाजपेयी, आप लोग काफी लोग उनसे परिचित होंगे, साइकेट्रिस्ट हैं लेकिन कानपुर में हैं, वो आना चाह रहे थे, उनका प्ले देखा हुआ है, इस कैंपेन से वो वाकिफ है। उन्होंने ईमेल पे जो हमें वक्तव्य दिया है, उसके बाद मैं डॉक्टर उर्वशी साहनी का एक वक्तव्य पढ़ूंगा और फिर मैं चित्रा जी से और रूपाली जी से, और मृदुला जी भी अभी आ गई हैं, तो मैं उसके बाद क्रम से आग्रह करूंगा चित्रा जी से मैं ये वक्तव्य पढ़ दूं। ये है वक्तव्य डॉक्टर आलोक वाजपेयी का, जो कि साइकेट्रिस्ट है। Vagina monologue is not truly a monologue, though for the narration's sake it works well. When Eva Ensler staged monologues a decade and a half back, each of these monologues engaged a wide range of people. Those who agreed and those who protested, with vast majority, left confused. It has received its share of criticism from neo-feminist to neo-colonial to traditionalist and touted by some as being anti-male. It needs contextualization. It must have been difficult to make women talk about a part of the anatomy that in patriarchal traditions, bracket, in which women also collude, is the ignored or dirty. A part that not only receives more slangs than the male genitalia, but for a traditional female mind may be the dirty knee. A part that menstruates, delivers, is mutilated, and the point of sexual assault and rapes. A part of self that may have instilled fear, shame, and who knows, a burden for some in conservative societies. VM and the subsequent V-Day have done more than it appears. Beyond the statistical surveys and semi-porn literature it gave respect to vagina and so to woman. Because what lives has a voice. The narration by each of 200 and more was the voice of the mind that wanted to live beyond the male gaze and its assault. This is Dr. Alok Vaishpei. I will now read the mail that I have received from Dr. Urvashi Sahani. I think Vagina Monologues is an important play. It deals with an important issue, women's sexual rights. The play is a very brave piece of work. No wonder it has had such an impact over the last 20 years. I saw it in 1991 in UC Berkeley in California. I will admit to being very shocked at first and then exhilarated. Seeing it again after 22 years, I had the same feeling, though in the reverse proportion. I was more exhilarated than shocked, embarrassed more than shocked actually. The gestures and the language was very explicit, and that was a little comfortable in a co-ed audience initially, but eventually the substance of the play took over and I was riveted. The play ran the gamut and dealt with the issue of women's sexuality very comprehensively, from sexual abuse and violence to the agony and ecstasy of motherhood, to lesbianism, to her right to sexual pleasure. It is the last that I want to comment on specifically. A woman's sexual needs and her right to pleasure are never considered. Her right to sexual freedom is a very far cry from being realized. The Vagina Monologue makes an important and passionate appeal for a woman's right to her own body and her sexuality. It is hers and she should take pride in it, value it, assert it, and take ownership over it. For too long, it has been a site of
shame, violence, abuse and use for the pleasure of men, for producing children for men. Women have been subjugated because they have been controlled sexually, physically, emotionally and morally. This play calls out to women and men to recognize the sexual politics at play and to liberate themselves from the social, political and moral definitions of their sexuality and its purpose. It also makes men sit up and take notice of and recognize something they have probably never thought of before. The play was performed so well. It was sensuous without being vulgar, restoring sex to its aesthetic dimension where it rightfully belongs, showing how our sexuality is a very integral part of ourselves, and in that it has a very internal, almost spiritual relationship to our identity. Rape is a more serious violation of our human dignity than other forms of violence because of this. I commend the playwright and the author who adapted it for Indian audiences, and of course, the actresses for being so brave. I actually asked the producer if they had a much milder, softer version of this appropriate for students. It is good sex education for young men and women both. I wish there could have been more discussion or a better introduction to the play so that the audience could have been situated better. Thank you. I have one more mail which I will read later. हमारी अतुल तिवारी जी से भी बात हुई थी और वो वक्तव्य नहीं दे पाए. उन्होंने कहा था कि आप कॉल करिएगा, यदि वो उपलब्ध होंगे तो टेली कॉन्फ्रेंस करेंगे. अब मैं चित्रा मोहन जी से आग्रह करूंगा, उसके बाद रूपाली जी और फिर मृदुला जी. धन्यवाद. धन्यवाद आशु जी. इस बारे में काफी चर्चा हो चुकी है. कुछ पत्रकारों ने मुझसे पहले भी बात की थी और अभी जितने परिचय हम लोगों ने सुने, बाबा ने बात की, राजेश जी ने बात की और आपने अभी उर्वशी जी की भी बात हुई. मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगी. ये नाटक वेजाइना मोनोलॉग्स जो उन्होंने देखा, मैंने चूंकि मूल रूप से ईव एंसलर का नाटक नहीं पढ़ा है, लेकिन जितनी बातें हुई और जितना मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की, उससे बिल्कुल ये स्पष्ट समझ में आया कि स्त्री की तमाम तरह की स्वतंत्रता के बारे में ईव एंसलर ने जो ये नाटक लिखा है, ये वाकई एक तरह के आंदोलन को लेकर के लिखा है और उस पर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय, काबिल तारीफ है. दूसरी बात, मैं किसी भी तरह की अभिव्यक्ति को बैन लगाए जाने के लिए बिल्कुल सख्त विरोधी हूँ. कहीं बैन नहीं लगना चाहिए. अब मैं आती हूँ महाबानो जी के इस नाटक, जैसा कि राजेश जी ने कहा कि हमने उसका एक मुंबईया संस्करण देखा. नो डाउट नाटक के बीच में कई दृश्यावलियां ऐसी थी जो बहुत मन को छूती हैं, स्त्री की तमाम तरह की स्वतंत्रता की बात करती हैं और अगर उसकी स्वतंत्रताओं में अगर यौन स्वतंत्रता को भी ले लेते हैं या को ही ले लेते हैं तो उस पर भी बहुत अच्छे तरह से बातचीत होती है. फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी महाबानो जी को कि उन्हें इस तरह की संरचना को अंजाम देने के लिए वो तमाम निरर्थक चीजें जोड़नी पड़ी जो उसे मसाले का पुट देने के लिए बाध्य करती हैं. अभी जैसे आपने वक्तव्य पढ़ा उस महिला निर्देशक का कि बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है इसके निर्देशन में, और महाबानो जी स्वयं एक स्त्री है तो वो इस चीज से सचेत नहीं रह सकी और बाकी चीजें जो उन्होंने डाली, जिसके बारे में मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, चाहे वो गालियों का प्रयोग हो, चाहे उस तरह की यौन स्वतंत्रता के बारे में जिस तरह का शाब्दिक उल्लेख किया गया है, उसकी मुझे लगता है कोई जरूरत ही नहीं थी. जो मूल नाटक है, जो मूल बातें हैं, अगर मैं सीमित करती हूँ कि उसकी सार्थकता पे या स्त्री की यौन स्वतंत्रता की बात पे, तो मैं उसी पे केंद्रित रहती हूँ. बात सिर्फ अब इस नाटक को देखने के बाद मेरे जो विचार उद्वेलित हुए कि काम और कामुकता, अगर मान लीजिए स्वतंत्रता की बात स्त्री के काम से, तो काम जहाँ अध्यात्म में कामुकता वही वर्जनीय है और ये नाटक जो है उस मुद्दे को हटा करके उसे कामुकता की ओर, स्त्री कामुकता की ओर ले जाता है. जैसा आपने कहा, मैं दोहराऊंगी नहीं, उसमें इस तरह के सीक्वेंसेस डाले गए, इस तरह के एंगल, जेस्चर, पोस्चर डाले गए जो सिर्फ स्त्री की कामुकता की ओर इंगित करते हैं. उस वेजाइना का जो मूल स्रोत है पूरी मानवीयता के, उसके प्रति संवेदनशीलता को कहीं दर्शाता ही नहीं, उसे खत्म कर देता है. और जितने भी लोग देख रहे थे या जो लोगों में चर्चा हुई कि देखें ऐसा क्या है नाटक में, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई बलात्कार अब और रुकेगा. अगर महाबानो जी कहती है कि मेरे नाटक की सार्थकता, अगर वो ईव एंसलर के मंतव्य से स्वयं
स्वयं को जोड़ती है तो कहीं नजर नहीं आता है। उनको कतई आवश्यकता नहीं थी इन सारी चीजों को डालने की। अगर वो इन सारी चर्चाओं को नहीं डालती, इन कामों प्रसंगों को नहीं डालती, इन गालियों का प्रयोग नहीं भी करती, तो शायद बहुत सशक्त नाटक होता। मैं तो ये कहूंगी कि बहुत सुनियोजित साजिश है इस नाटक को बेचने के लिए। 200 रुपए का टिकट लगा करके आप इस नाटक को कर रहे हैं। अगर आप सच में कहते हैं कि एक आंदोलन है, तो वाकई जिन्हें देखना चाहिए था वो 200 रुपए का टिकट देख करके वो लोग नहीं आ पाए, जो शिक्षित होते और वो जो इसको देखते और शायद इसकी संवेदनशीलता से कुछ ग्रहण कर पाते। बात सिर्फ इतनी है कि इस नाटक की जो संवेदनशीलता, महाबानो जी के नाटक की मैं बात करूंगी, ई वेंसलर के नाटक की बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, वो अपने मंतव्य को सार्थक नहीं कर पाती है। और इसकी बड़ी मेरी तीखी प्रतिक्रिया थी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हम कौन होते हैं ये बात कहने वाले, लेकिन एक अपील हो सकती है, क्योंकि मैं महिला हूँ, मैं निर्देशन भी करती हूँ, मैं इन चीजों के लिए बहुत सचेत हूँ। और जैसा बाद में कहता वैजाइना, मुझे इस शब्द से कोई परहेज नहीं है, स्त्री की योनि से कोई परहेज नहीं है। बात होती है कि उस योनि का प्रदर्शन और योनि का मंतव्य क्या सार्थक सिद्ध हो पाया, क्या उसकी औचित्यता वहां पर निकल के आई। बात स्त्री विमर्श की नहीं है, बात स्त्री स्वतंत्रता की नहीं प्रूफ हो पाई उस नाटक से, बल्कि कामुकता का परिहास और चर्चा बन करके रह गई। चंद लाइनें मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूंगी और मैं ले करके आई हूँ, खासतौर से शायद ये मेरी पूरी बात को कह सके। वैजाइना मोनोलॉग नाटक की प्रतिक्रिया में, वैजाइना मोनोलॉग है क्या? एक ब्लॉकिंग, एक ओपनिंग या फिर एक सेलिब्रेशन? औरत की योनि उसकी स्वयं की संज्ञा है, उसके लिंग का निर्धारण करने वाली मानक जो उसे दूसरे लिंग से जुदा बनाती है। योनि जो सर्जना का स्रोत है, संपूर्ण मानवता का उद्गम है। योनि जो अनहद नाद का आनंद है, मिलन के उत्तम क्षणों में परमानंद का गान है। भला नामों की सीमित परिभाषा में उसे बांधा जा सकता है, उसमें उसके तमाम नाम प्रयोग किए गए थे कलोकियल लैंग्वेज में। भला नामों की सीमित परिभाषा में उसे बांधा जा सकता है। वैजाइना एक बेमानी जड़वत नाम इसे संकुचित कुंठित बना देता है। इसे सार्वजनिक बनाने वाले मंच पर इसके शाब्दिक उल्लेख से इसकी असीम आध्यात्मिक उर्वरा को ऊसर बनाने की सुनियोजित साजिश रचते हैं। महज इसके बाजारीकरण के द्वारा इसके चुंबकत्व की पैनी धार को गोठिल या मोथरी कर देते हैं। उन्हें मिलती है शोहरत, पैसा और विवादित चर्चाएं, लेकिन बेचारी योनि, वो अपनी मानवीय योनि की इस नश्वर नामित योनि के उधड़ेपन को बर्दाश्त करती सिसकती, अपनी ओर खींचती कामुकताओं को रोक नहीं पाती। काश की वैजाइना मोनोलॉग एक प्रोलॉग होता उस योनि का, जिसे किसी भी शाब्दिक आवरण की जरूरत नहीं पड़ती। उसे जरूरत है उस अभेद्य दीवार की जो उसके अंतस की पीड़ा और बर्बर अमानुषिक अत्याचारों को रोक सके। जरूरत है उन सृजनात्मक हथेलियों की जो उसे सहेज उसके भीतर संवेदनाओं के फूल खिला सके। योनि मनुष्यता की जननी का गौरव पाकर सार्थक हो सके, उसे मोनोलॉग नहीं प्रोलॉग में ही समेट सके। थैंक यू। बस मुझे इतना ही कहना है। उतने में ही आपने बहुत कुछ कह दिया। केवल आपको एक छोटी सी जानकारी दे दें। एक तो ये जो पूरा इसका स्क्रिप्ट है वो नेट पे अवेलेबल है। अगर आप कहेंगे इसके कई वर्जन्स हैं, जो एक जो उन्होंने वी-डे एडिशन है जिसमें स्क्रिप्ट के अलावा और भी मटेरियल है, जो वी-डे जो सेलिब्रेशन वो चल रहे हैं, तो वो भी उपलब्ध है। हाँ, वो भी उपलब्ध है। थैंक यू। और एक इनकी जो वैजाइना मोनोलॉग की जो यूके साइट है, उसमें शुरू में एक ब्लर्ब आता है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने वो चीज रखी है। वो सब वो पहला पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूं मैं, आखिरी पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, जिसकी आखिरी लाइन बड़ी मजेदार है। A staggering number of the world's most famous talented women, from Kate Winslet and Whoopi Goldberg to Sophie Dahl and Jerry Hall, have chosen to take part in the show in New York, Los Angeles and London. अब जो ऑपरेटिव सेंटेंस है वो अब आता है। The riotous evening is the ultimate girls' night out. The riotous evening is the ultimate girls' night out. मैंने एक चीज शुरू में कही थी कि कहीं एक सांस्कृतिक विलगाव है, दूरी है। वहां पे जिस तरह से नाइट आउट में मेल स्ट्रिपर्स होता है, हमारे यहां शायद अभी अत्यंत संभ्रांत या अत्यंत उच्च वर्ग में वो आया है या नहीं आया, मेरी जानकारी नहीं, वो आ चुका है। बॉम्बे वाले में तो है। लेकिन अमेरिका में और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में
उसके लिए कहीं हमें लुके छुपे फोन नहीं करना है, वो तमाम जॉइंट्स अवेलेबल हैं। तो ये उसी को ये जो यूके साइट है वेजाइना मोनोलॉग की, वो अपने होम पेज पे ब्लर में लिख रही है द ब्राइटेस्ट इवनिंग इज द अल्टीमेट गर्ल्स नाइट आउट। जैसा कि महाबानो जी भी अपने इंटरव्यू में शुरू में ही कह रही हैं, I thought it was the perfect entertainment package, getting a message across by making people laugh and cry at the same time. तो आगे मैं नहीं कुछ कहूँगा। वहाँ पूरा हम विजुलाइज कर रहे हैं दोबारा जब हम वहाँ बैठे थे, और जो हमारी फीलिंग्स थी, जो रिएक्शंस थे, वो वही दोहरा रहे हैं। बहुत ही क्रूड लगा। जो भी एजुकेशन वो देना चाहते थे, जो भी एक इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ women to be respected, how to be dealt with, वो बहुत ही क्रूड वे था हमको जो लगा अपनी फीलिंग्स। By the end of the play, I think men will be able to tell better, but what I could gauge was इतना eroticism था कि I think they must have gone home and told their wives, look, I'll deal with you very nicely, but so उसकी ज़रूरत नहीं महसूस हुई। जैसा आपने कहा, वो मोन्स जो थे उनका क्या मकसद था नहीं पता। जैसा कि सूर्य मोहन जी ने कहा कि कुछ बात निकल कर नहीं आई, तो और अगर वहाँ पे जो टीनेजर्स थे, वहाँ पे कोई किसी की एज तो चेक नहीं कर रहा था, जो सेक्स एजुकेशन यहाँ पे नहीं मिलती है इतनी, खुद से पीयर से और अपने फ्रेंड सर्कल में रॉन्ग या राइट जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है लड़कों को, वो किस तरह से उसको देखते हैं, किस नज़रिए से, और वो ग्रुप अगर वो एज क्लास बैठा था वहाँ अगर, तो उनके लिए एक बहुत ही फिर से वही बहुत ही ब्लंट और बहुत ही क्रूड तरीका था समझाने का, फीमेल एनाटॉमी का डिस्क्रिप्शन देने का। वो जो एक सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, जो चाइल्ड बर्थ है, वो सब चीज़ें ठीक है, बट जो उसका वही डिस्क्रिप्शन है पूरा पिक्टोरियल, वो देने की हमारे ख्याल से ज़रूरत हमारी ओपिनियन में नहीं थी। जो डिस्क्रिप्शन था वो जो उनका मेन एम था टू वो फीलिंग्स को पैशनेट पेथॉस या पैशनेटली डील करना, विमेन की फीलिंग्स को फिजिकली इमोशनली, वो उनके जो डिस्क्रिप्शंस थे उनसे वो अलग ले गया एकदम। Then women again, I won't agree with this कि women should not be encouraged to work in large numbers, चाहे वो सेल्स गर्ल हो, चाहे वो हम अभी यूएस गए तो वहाँ पे 90% in the restaurants women and females and college girls are the waitresses. Again, it is the mindset, the awareness जो पिछले कई महीनों से कुछ चल रही है कि awareness and the mindset जो males का है towards females, वो अगर नहीं change होगा तो वो अपने घर की भी लेडीज को they treat them as commodities. The housewives, तुम ये काम करो, बट जहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, जहाँ पे उनको लगता है कि मज़ा आएगा, या बहुत सी फीमेल्स हैं, they try to avoid taking their wives. So again, उसके लिए तो male are responsible the day they start seeing women or females with respect, whether whatever job they opt for, the things will change.
The whole idea was to awaken the feelings and behavior of men towards women, I'll repeat, and in a very sensitive way. Then this was not the way. And again, it was at the end of it, it promoted eroticism. And that's रूपाली जी, जो मैंने समझा, बाबा ये कहना चाह रहे थे कि जिस तरह से एम्प्लॉयर की एम्फेसिस रहती है कि सेल्स गर्ल जो है पॉइंट ऑफ द सेल पे हो, उनका मंतव्य था और जो वो स्पष्ट कह रहे थे, एम्प्लॉयर की मानसिकता ये है कि वो एज अ कमोडिटी उसे यूज कर रहा है। वो इसके खिलाफ नहीं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि लड़कियों को या औरतों को सेल्स गर्ल नहीं होना चाहिए। उनकी एम्फेसिस थी, जो मैं बगल में बैठा था, स्पष्ट करते हैं कि लड़कियां सेल्स गर्ल हो, वेट्रेस हो, इस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे बड़ी संख्या में लड़कियों को डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और साइंटिस्ट होना चाहिए, और फील्ड्स में उतने बड़ी अपॉर्चुनिटीज ये सिस्टम नहीं दे रहा है जितनी कि ये साजिश लग रही है कि इन फील्ड्स में तो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बाकी फील्ड्स में नहीं दे रहा। बाकी फील्ड्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ये मेरा कहना है। मृदुला जी, सबसे पहले तो जो वो प्ले पहली बार वहाँ होना था और वो नहीं हो पाया, उसको लेके इतनी कंट्रोवर्सी हुई, मुकदमा चला, ये दुनिया भर का हुआ, उस सब से वो बहुत ज्यादा प्रचारित हो गया। और उस प्रचारित होने के कारण इस बार जितने दिन का ये फेस्टिवल था, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा उसी दिन मारामारी थी कि लोगों को लग रहा था कि भाई ऐसी क्या बात है कि इसको क्यों बैन कर दिया गया था, बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो जहां तक बैन की बात है, उसके तो मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि आपको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, तो आप किसी भी प्ले को बैन नहीं कर सकते हैं कि आप उसके विषय को लेके आप बैन कर दें कि प्ले नहीं होना चाहिए। तो वो प्ले दोबारा हुआ, ये अच्छी बात है, लोगों ने देखा। प्रस्तुति देखने के बाद बीइंग फीमेल, मैंने पूरी प्रस्तुति के शुरू से लेकर और अंत तक कहीं भी मुझे कोई भी चीज ना तो रोमांचित कर पा रही थी, ना कोई विशेष इंफॉर्मेशन दे रही थी, और ना मुझे, ये मेरी पर्सनल बात हो सकती है, ना मुझे कहीं वो नाट्य प्रस्तुति के रूप में आकर्षित कर पा रही थी। अब प्रश्न ही उठता है कि ये शायद मेरे ही साथ था, या मेरी मानसिकता हो सकती है, या दूसरों की भी कुछ इस तरह की मानसिकता थी, मेरे आसपास भी जिस तरह के लोग बैठे थे। मुझे लगता है कि खाली ये यौन ही नहीं, अगर किसी भी आपके किसी भी अंग की बात करी जाए, किसी भी उसकी आप बात करते हैं, तो उसकी बात आप क्यों करना चाहते हैं, ये दिमाग में बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर हम सिर्फ आंख की बात करने की बात करें, हमारी बहुत सारी इंद्रियां हैं, दूसरी इंद्रियों की भी बात करते हैं, तो उन इंद्रियों, आप अगर इंद्रिय के द्वारा कहलाना चाहते हैं, तो वो इंद्रिय खुद क्या महसूस करती है, उसको कैसे लगता है, क्या होता है, उसकी सार्थकता क्या है, उसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये इंद्रिय इतनी ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है, और उसके साथ एक जोड़ दिया गया है औरतों के साथ में कि औरतों के लिए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो कर दिया गया है कि उनकी स्त्रीत्व भंग हो जाता है और ये हो जाता है। बहुत सारे हमारे यहाँ दिमागी वो हैं, बाउंडेशंस हैं, जिनको लेके ना हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। आज भी हम बड़े अच्छे शब्द का, यौन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि उसमें नाटक में, जैसा कि उन्होंने कहा कि जो चालू भाषा में शब्द है, उस शब्द का हम प्रयोग क्यों नहीं करते। अब सवाल इस बात का है कि वो कहते हैं कि उस भाषा का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, और उस भाषा पे ही आपने एक गाना बना के आप सबसे उसके नारे लगवा रहे हैं। गाली बकना या गाली देना, या औरत गाली दे सकती है कि नहीं, उसे गाली का अधिकार है नहीं, या उसके उन अंगों का प्रयोग होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो हमारे समाज में बिल्कुल वर्जित हो, होता ना हो। उन्होंने पहली बार किया उस स्टेज पे, ऐसा कतई नहीं है। हम सब लखनऊ जैसे शहर में रहते हैं, और किसी भी सब्जी मंडी में आप चले जाइए, किसी भी छोटे इलाके में चले जाइए, और सब्जी वाली से इससे बात करिए, उन लोगों को आपस में लड़ते देखिए, तो माँ बहन की गालियों से नीचे बात नहीं करती है, और खाली माँ बहन की नहीं, पुरुषों के अंगों को लेकर भी गालियां देती हैं। तो आप वो स्टेज पर गालियों हम क्यों नहीं दे सकते, इस शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, इस बात पर काफी जोर दिया गया था, जो मुझे कतई अपील नहीं किया कि इसकी कोई बहुत आवश्यकता थी। अपने किसी भी अंग को समझने के लिए, उसकी संवेदनशीलता को महसूस करने के लिए, आपको उसको देखने के लिए आपने जिस तरीके से उसका वर्णन किया,
और जिन चीजों का जिस तरह से वर्णन किया वो एक बहुत विभत्स रूप था नारी के उस अंग का। मुझे तो महसूस हुआ बीइंग फीमेल कि उन्होंने उसको बहुत अच्छे सेंस में ले जाने की जगह, देखिए हमारे यहाँ हम लोग सब जानते हैं कि शिवलिंग क्या है। मैं बहुत छोटी सी थी, मुश्किल से 8-10 साल की रही होगी, तो शिव जी की पूजा के लिए शिवलिंग के मंदिर, जब शिव जी के मंदिर जाया करती थी, तो एक दिन मैंने अपनी मम्मी से पूछा, और हम ठीक ठाक पढ़ी लिखी फैमिली को बिलोंग करते हैं, माय मदर वाज दैट टाइम ग्रेजुएट, और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मम्मी ये है क्या जिसकी हम पूजा करते हैं? मेरी मम्मी ने बिल्कुल साफ साफ मुझे शब्दों में बताया कि ये क्या है। तो हम जहाँ से शिक्षित होने की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ वो जो सृष्टि जहाँ से उत्पन्न होती है, जहाँ से जो कुछ होता है, तो ऐसा नहीं है कि इतना वर्जित है कि जब आप बताएंगे कि इंपॉर्टेंट चीज है इसको देखिए तब हम देखेंगे। मुझे ये लगता है कि ये एक अजीब सी मानसिकता से दिखाई गई बात या कही गई बात, जिसमें कि निर्देशक जो थे वो खुद इस बात पे साफ नहीं थे कि वो इस विषय को लेके कहना क्या चाहते हैं। वो केवल उस विषय का उस यौन का वर्णन करना चाहते हैं, या उसकी संवेदनशीलता बताना चाहते हैं, या उसके प्रति पुरुषों द्वारा किए गए अत्याचार की बात करना चाहते हैं कि क्या क्या होता है। एक प्रसंग कहीं थोड़ा सा मुझे ठीक लगा या कहीं अपील किया कि जो उन्होंने जब प्रजनन वाली बात, जन्म देने वाली बात को जिस तरीके से उठाया था कि जब कोई भी स्त्री बच्चे को जन्म देती है, शिशु को जन्म देती है, उस समय उस भाग की किस तरह की फीलिंग होती है या किस तरह की होती है, उस तरह की चीजों को को लेके बात करते, उसके साथ कितनी क्रूरता होती है। आप आज जिस तरह की बात चल रही है कि आप बलात्कार की बात करते हैं, तो बलात्कार से लेके और पीरियड तक की बात, सारी बातें आपने उसको उठाई, तो ना तो मुझे वो बहुत क्रम से लगा, चीजें लगी, ना मेरे कहीं से अंदर को ऐसी चीज लगी कि कोई भी अच्छी चीज या इंफॉर्मेशन वाली चीज भी हो तो आपका ये मंजूर करता है दोबारा से इसको देखें, शायद मुझसे कुछ छूट गया हो, शायद इतने ज्यादा इस पे चर्चा हो रही कोई ऐसी बात लगी हो। तो मेरे हिसाब से तो मुझे प्रस्तुति भी बिल्कुल सार्थक प्रस्तुति नहीं लगी, और जो बात वो कहना चाहते थे वो कहना नहीं चाहिए, पर मुझे तो लगा कि बहुत भौड़े ढंग से कही गई बात थी, जिसने कहीं भी मुझे किसी भी तरीके से ना मेरे मन को छुआ ना, और नाटक के नाम पर भी जिस तरीके से वो कोई इस तरीके नाटक कर रही थी, आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, उसको बता रहे थे, तो वो एक इन्फॉर्मेशन जैसी आप दे रहे थे, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्रम चीजों को। और एक बात चित्रा ने बहुत अच्छी बात की कि ये जितनी इसमें 50% जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, वो इन्फॉर्मेशन जो क्लास देख रहा था वो आपसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन उसके पास है, और अब तो नेट है, सबको सारी तरह की इन्फॉर्मेशन है। जिस क्लास को आप बताना चाहते हैं, जिस क्लास की आप बात कर रहे हैं कि पीरियड हो तो हमको शुरू हुआ तो 5 दिन कमरे में रख दिया गया, यहाँ कर दिया गया, वहां कर दिया गया, वो क्लास तो देख ही नहीं रहा है। उसको आप बताइए कि ये गलत काम है, ये गड़बड़ किया जाता है, और उसमें लड़की की क्या मानसिकता होती है, या फर्स्ट टाइम उसका पीरियड होता है तो उसको किस तरह से उसके दिमाग पे बोझ रहता है, किस तरीके से आप देखिए। उस योनि की तरह एक छोटी सी चीज है कि जिस दिन लड़की का पीरियड स्टार्ट होता है और उसके बाद से वो लड़की एकदम से किस तरह की औरत के तरीके से सोचने लगती है, बड़ी हो जाती है, ये होता है वो होता है, माँ बताती है कि इसके बाद ये हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है, अब तुमको पुरुषों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि अब तुम अगर कुछ इस तरीके का होता है तो तुम प्रेग्नेंट हो सकती है, तो हो सकती है। तो वहां से उसकी क्या मानसिकता बदलती है एक सिर्फ पीरियड स्टार्ट होने से। इस तरह की चीजों को मुझे लगता है कि अगर नाटक में उठाया गया होता, छुआ गया होता कि कहां से कहां चेंज होते हैं दिमाग, वो इस तरह का मुझे उस नाटक में कुछ नहीं लगा, इसलिए मैं तो इसको बिल्कुल भी सार्थक प्रस्तुति नहीं मानती हूँ। एक बात और रही कि इसमें स्त्री स्वतंत्रता जैसी क्या चीज थी, ये मेरी समझ में बात नहीं है। आज हमारा समाज जिस तरह की चीजों से जूझ रहा है और जिस स्वतंत्रता की बात करता है, तो किस स्त्री, आप सेक्स की स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, वो भी नहीं थी उसमें। क्या आप ये कह रहे थे उसमें क्या नाटक नहीं, ये कहीं कहना चाह रहा है स्त्री स्वतंत्र है, उसका सेक्स है, वो जिसके साथ जाए, जैसे चाहे, जब चाहे करे, ये भी तो नहीं था। तो ना सेक्स की स्वतंत्रता, ना मानसिकता, स्त्री की मानसिक स्वतंत्रता की बात। और आज तो हम जहाँ पर बात
पवित्रता की बात करना बिल्कुल मुझे तो निरर्थक बात लगती है। मृदुला जी, मैं आप ही की बात के सप्लीमेंट में कहूँगा कि हम लोगों ने सबने अपने यहाँ परिवारों में शादियाँ अटेंड करी होंगी। अब वो गालियाँ कम हो गई हैं और जिसमें महिलाएं ही बैठती हैं और जिसमें बच्चियां जरूर होती हैं, उन गालियों, उन गीतों के जरिए एक पूरी परंपरा है, ठीक, वो शिक्षा देने की एक पूरी परंपरा है। तो शायद हम जिस ग्रामीण अंचल में की बात कर रहे हैं वहां हाइजीन के बारे में शायद आज ज्ञान ना हो, लेकिन बाकी ज्ञान उनको नहीं है, ये विवादास्पद है। शायद हम उस संस्कृति से अनभिज्ञ हैं। हमें वो जो पूरा वाङ्मय साहित्य, क्योंकि वो वाङ्मय है, वो तमाम लोकगीत जिनमें बहुत वृहद और बहुत विस्तृत वर्णन है, ठीक, वो और उससे यहाँ पे मौजूद शायद हर कोई उससे वाकिफ होगा, क्योंकि हर अंचल में, हिंदुस्तान के हर अंचल में शादी ब्याह के मौकों पे वो गीत गाए जरूर जाते हैं। मैं अब जुगल जी से अनुरोध करूंगा।